1, 2, 3. चलो भाई चले चले स्माइल. सबने करना है जोक है. नहीं सही आई दोबारा से. Just one more. चलें 1, 2, 3. सर आप भी करें. सर हाँ आप भी करो. थैंक यू. बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा लास्ट डे हम लोगों ने we did exercise 6.3 in which we studied that how we can make the factorization using grouping, and we got 4 terms in that exercise for which we have to make a group of 2 terms. So today we will study about a full formula that we have discussed in exercise 6.1. That was a square minus b square, and which was equal to a plus b into a minus b. So just get ready. आज एक्सरसाइज बेटा नॉर्मल एक्सरसाइज बहुत इजी है, एंड हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही हमारी कंप्लीट हो जाए. So this is the basic formula. We have studied this formula in 6.1 that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. It means that बेटा कि आपको अब जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आप लोगों ने इसकी जो फॉर्मूला की लेफ्ट साइड है वो आपने जनरेट करनी है. That means you have to convert your expression in the form of a square minus b square. And when you convert your expression into this form, you will write it factorization on the right hand side, that is a plus b and a minus b. Just like suppose I have 9x square minus 4. I have these two terms. First of all, I have to convert these two terms into whole squares. Like 9 is, we can write it 3 square, because 9 is equal to 3 square. 3 power 2 means 3 multiplied by 3, that is 9. So 9x square could be written as in the form of whole square, that is 3x whole square. 3 square is 9 and x square is x square. Minus 4 could be written as 2 square, 2 power 2. 2 2s are 4. Now this expression has become in the form of a square minus b square, and the factorization of this a square minus b square is beta a plus b and a minus b. So here a is 3x and b is 2. So I will write 3x plus 2 and 3x minus 2. You have studied this topic or this formula in your previous class, grade 7. Similarly, here's another example. Beta, I told you that if any element or any variable or any constant is common in the expression, you have to take common first. अगर आप इसको common नहीं लेंगे बेटा तो आपका जो question है वो ठीक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा. You should have to take it common. Like this question, we have 3 in common because x square is only in the first term. So it will not be in common both terms. So 3 is common because 3 is HCF of 3 and 75. 75 जो है बेटा अभी 3 पे डिवाइड होता है और 3 तो वैसे ही मैक्सिमम नंबर है, तो हम 3 और 75 पे डिवाइड कर सकते हैं. आप ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप ये 6.1 में टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, 6.2 में टेकिंग कॉमन लेने का. तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे बेटा, तो मीनिंग वी हैव ओनली x स्क्वायर माइनस अब 75 को 3 पे डिवाइड करें बेटा तो 25 आएगा. अब वैसे भी HCF निकालेंगे तो 25 ही आता है. 3 2 6, 7 है तो 1 कैरी राइट पे चले जाएगी, दैट इज 15, एंड देन वी गेट 3 5 are 15. अब बेटा जो ब्रैकेट के अंदर है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे फार्मूला में, जस्ट लाइक जो मैंने ऊपर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. सो x स्क्वायर इज एज इट इज एंड 25 जो है बेटा एक स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर मीन 5 are 25. So this x square minus 5 will be converted into the formula, that is a square minus b square. Here a is x and b is 5. So we will apply the formula that is present on the right side.
that is equal to a plus b and a minus b. So I will write x plus 5 and x plus 5. Okay, beta, have you studied this topic or this formula before in your previous class? Wali, please open your mic. Yes, sir. बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आए हैं जो यहाँ किए गए हैं? वली, बेटा प्लीज आंसर. दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए? ये दोनों यस सर. बिलाल फारूक, आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? बिलाल बेटा प्लीज ओपन योर कैमरा. मिस्टर बिलाल फारूक, जी बेटा समझ आ गए दोनों क्वेश्चन? आपका बेटा माइक ऑन करो. जी सर आ गए समझ. ये बताओ आपने 7th में किए थे ये वाले क्वेश्चंस? जी सर किए थे. चलें आप प्रैक्टिस का जो दो एग्जांपल्स हैं मैं आपको ये करवा रहा हूँ अभी. एग्जांपल नंबर 10 है और एग्जांपल नंबर 11 है. सो नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 10. इट सेज फैक्टराइज करें बेटा 6y² b - 81 bx². सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर बेटा कि अगर कुछ ना कुछ कॉमन बेटा आता है तो आप लोगों ने वो लेना है, हर से कॉमन लेना है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी. अब वैसे भी बेटा देखा जाए तो हम लोग इसको भी कंप्लीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक हम लोग b को बाहर इवैल्यूएट ना कर लें, उसको हम लोग सेपरेट ना कर लें. सो नाउ बेटा इफ we take b as common, we left only 16y² from the first term and 81x² from the second term. Then I will convert both the factors or both the convert this expression and the terms in the whole into the form of square. 16y² बेटा हम लोग लिख सकते हैं 4 whole square because 4² is 16 and y² is as it is. So 16y² could be written as 4y whole square. And 81x² could be written as 9x whole square because 9² is 81 and x² is x whole square. So now this expression has been converted into a² minus b². Again by applying the formula which is equal to a plus b and a minus b. Our answer will be 4y plus 9x यानी a plus b हो जाएगा बेटा and 4y minus 9x a minus b हो जाएगा. इसी तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन की एक और फॉर्म दी है बेटा एग्जांपल नंबर 11 में 3x plus 5y whole square minus 49z whole square. अब बेटा अगर इस एग्जांपल में आप देखो तो 3x minus 5y को आपने एक सिंगल टर्म कंसीडर करना है. आप समझें कि आपके पास ये a ही है यानी that is 3x minus 5y is represent a. So again that become a² minus अब हम लोगों ने सिर्फ 49z² को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो 49 किसका स्क्वायर होगा? 7 का स्क्वायर होगा बेटा. z एज इट इज रहेगा और z का स्क्वायर z का वो रहेगा. तो 49z² जो है दैट कुड बी रिटन एज 7z होल स्क्वायर. सो फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ फिर जनरेट हो जाएगा a² minus b² का. सो वी विल राइट a plus b and a minus b. यहाँ बेटा जो 3 minus 5y है ये a को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों टर्म मिलकर a को रिप्रेजेंट करेंगे. सो फॉर्मूले में आएगा a plus b और a minus b. एक बार हम प्लस करके लिखेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे. जी सिंपल बेटा आपको समझ आ गई दोनों ये वाली? अब्दुल रहमान, मिस्टर अब्दुल रहमान बेटा प्लीज टर्न ऑन योर अब्दुल रहमान. वेयर इज अब्दुल रहमान? बेटा अगर किसी को समझ नहीं आई तो अपना हैंड रेज करे, अदरवाइज फिर आगे क्या है वो उसको कंटिन्यू करूंगा इन क्वेश्चंस को. ओके बेटा हम लोग अब एक्सरसाइज पे चल रहे हैं. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा 9 minus x² क्वेश्चन नंबर 1 है. देखिएगा हम लोग इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. वली बेटा आपको नींद आ रही है? आप सीट को छोड़ के बैठे बेटा. वली नो सर. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लेट हुए हो. एक्टिव होके बैठो बेटा, मेरे उसको समझ नहीं आएगी. बना ऐसे मैथ एक्टिव होके समझना पड़ता है. ये तो वैसे ही बहुत इजी चीज है, आप इसको इजी ले रहे हो है ना. ओके बेटा वली बेटा a² minus b². तो 9 होगा बेटा 3 का होल स्क्वायर और x² तो एज इट इज रहेगा. ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बन गया a² minus b² बेटा. सो वी विल राइट इट a plus b and a minus b. 3 plus x and 3 minus x. ऐसे ही है.
सर। ये बेटा मुझे बताओ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया है, समझाओ जरा मुझे जल्दी जरा, शाबाश। सर ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला बेटा समझाओ जरा मुझे। मैं बताऊं? अब बता दे समीर सुल्तानी, ऑन करे पहले कैमरा ऑन करे। सर इसमें जो सवाल है वो -6 + 6y² है। ठीक है और बोल। इसमें सर सवाल है -6 + 6y²। और सर फिर हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है, इन दोनों में से नहीं वो देखो बेटा, निकलता है। नहीं देखो, अभी -6y² के दरमियान प्लस का साइन है, इस पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो पहले मुझे इसके साइन को दरमियान में नेगेटिव साइन लाना है। और वैसे भी अगर देखो तो नेगेटिव साइन तो फर्स्ट टर्म के फर्स्ट के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो इसको मैं पहले रीअरेंज कर लूंगा, 6y² पहले लिख लूंगा और -6 बाद में लिख लूंगा, ठीक है। फिर इसमें से 6 आ जाएगा बेटा, बाकी रह जाएगा y² -1, और y² तो ऑलरेडी y² की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो 1 को भी मैं 1² फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर a - b² का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a + b और a - b। सही है बेटा? सर ये सवाल मैंने किए हुए हैं, ये आते हैं लेकिन ना समझ नहीं आ रही एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये मेरे सवाल आते हैं। अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा, एक्सप्लेन करना जब आ जाएगा ना तब आपको ये समझ आएगा आपको क्वेश्चन आ गए हैं। हमेशा जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो अच्छा टीचर भी होता है, आप जब इसको समझे, जब दूसरों को समझते हैं तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन ठीक हो गए, चलिए आगे। तलहा शफकत बेटा जाग रहे हो? तलहा बेटा कहाँ है आप? अब जागिए बेटा। आज क्या तारीख है बेटा? और फिलहाल सो जाते हैं। हाँ मैं, मुझे पता है, मुझे सुनने में आया कि 1-2 लोग कैमरा ऑन करके तो बस सो जाते हैं। मैं जाग रहा हूँ समीर मैं जाग रहा हूँ। तलाश कौन सा दिन है बेटा? तलाश कौन सा दिन है बेटा? जुम्मे आज। शाबाश, आज जुम्मे रात है बेटा, आज जुम्मा है। सर तारीख पूछे है। आज लगता है रात को आप सोए नहीं हुए ना, तो जुमेरात ही तुम्हारी भी चल रही है। सर तारीख पूछे, जुम्मे तो बड़े गुजरते हैं, तारीख पूछे आज तला से। जी तलहा, तारीख क्या है बेटा आज? 17 जुलाई है। हाँ जी ठीक है, चले बेटा अपने क्वेश्चन करते हैं। चले चला तो याद नहीं थी, कह रहा था सर मेरे से पूछ लेंगे, मैं पहले पूछ लेता हूँ। अच्छा चलो तलहा, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 समझाओ जल्दी से जरा। मैं? जी आप ही, ये क्वेश्चन 3 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे समझाएं। सर इसमें हमने किया है सर, इसमें पहले ना हमने इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 6 का हमने लिया है, 4 का स्क्वायर ले तो 16 आता है, और x पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, इसको हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमने माइनस लगाया, तो उसके बाद ब्रैकेट में हमने 25 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको 5 लिखा, फिर a और b दोनों पे स्क्वायर है, इसको हमने ब्रैकेट में करके एक पे स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद सर हमने इसको फॉर्मूला लगाया, इस पे फॉर्मूला लगाया जब सर हमने इसको 4xy - 5ab लिख दिया, और सर अगले में भी हमने 4xy - ab। तो आपको समझ आ गई, मतलब सबको समझ आ गई, गुड। अब्दुल हादी इमरान बेटा प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अब्दुल हादी इमरान, जी बेटा चलें आप, शाबाश। जरा बाल ठीक है आपके बेटा, चलें क्वेश्चन 4 समझाएं जरा। उठ जाओ यार, कैमरा ऑन करो। हाँ सर इसके अंदर आपने कॉमन लिया है। अच्छा और क्या कॉमन लिया बेटा? एक्स वाई। ठीक है। और सर एक्स वाई, और सर इस फर्स्ट वाले के अंदर आपने एक्स क्यूब था तो आपने एक निकाल के एक्स स्क्वायर लिख दिया, और दूसरे के अंदर एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। और सर फिर ये a - b इसी तरह हो गया, x a के x को a लिख सकते हैं और y को b। ये फॉर्मूला बन गया है इसके -20 का, तो एक बार प्लस का और एक बार -x + और x - y। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, हमारे पास स्टिल
अब यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर इसमें देखें तो बेटा अभी मैंने कल भी हमने बल्कि लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जहाँ हमने स्क्वायर कंप्लीट किया था जिस एक्सप्रेशन में, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि बाज़ औक़ात फर्स्ट और लास्ट दोनों स्क्वायर बन जाती हैं, लेकिन अगर आप कॉमन नहीं लेते हो और कॉमन लिए बगैर आगे चले जाते हैं फैक्टराइजेशन करने, तो वो गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज फिर हम उसको फैक्टराइज नहीं कह सकते। फैक्टराइजेशन में बेटा सबसे पहला रूल आप लोगों ने यही फॉलो करना है, इफ समथिंग इज कॉमन इन द एक्सप्रेशन यू हैव टू टेक इट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, कोई चीज अगर कॉमन है तो सबसे पहले काम होगा उसको कॉमन लेना, उसके बाद कुछ भी आपने अप्लाई करना है वो इसके बाद आप लोग करेंगे। यहाँ 16 जो है वो कॉमन आ रहा है बेटा, पहले मैं 16 को कॉमन ले लूंगा और हमारे पास बाकी रह जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, फिर मैं इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, स्क्वायर तो वैसे ही लिखा जाएगा, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर तो 5b होल स्क्वायर। उसको फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो क्वेश्चन खत्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा जो है a स्क्वायर b, इसके दोनों में है वो भी कॉमन आ जाएगा, और b दोनों में कॉमन है वो b कॉमन लिखा जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास, दोबारा बोलो हैंड रेज कर लिया करो ना, मुझे बेहतर हो जाता है, मैं आपको ना जरा एक्टिव होकर क्वेश्चन कर सकता हूँ। सर ये जो फिफ्थ वाला है इसमें 16a स्क्वायर माइनस वो गलती से लिखा गया बेटा, आप सही कह रहे हो बेटा, 2 नहीं आएगा वो 16 है। वो कल मैंने फॉर्मूला कॉपी किया होगा तो उसको मैं एडिटिंग नहीं कर पाया, तो मैं भी आपको एडिट करके ग्रुप में सेंड करूंगा। ये बाहर कॉमन 16 जो है बेटा नीचे लास्ट 2 में ना 2 लिखा गया गलती से, तो 16 ही रहेगा, ठीक है, वो गलती से 2 लिखा गया, मैं करेक्शन कर देता हूँ। तब इसको भी आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, पर पीपीटी में आपको 16 जो है वो उसको करेक्शन करके भेजूंगा, ठीक है। बात करता हम लोग फॉर्मूला लिखने की प्रेजेंटेशन बन रही होती है, तो उसमें बात का जब फॉर्म पे कॉपी वगैरह होती है, कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो रह जाती है कुछ चीज़, तो इससे नहीं आएगा, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एज के बी कॉमन आ गया बेटा, बाकी हमारे पास अनकॉमन में बचा फर्स्ट टर्म में से बी स्क्वायर और सेकंड टर्म में से 64। उसके बाद हम लोगों ने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, इसके तो एज इट इज रहेगा बेटा 64 जो है वो 8 का स्क्वायर, दैट इज 8 8 64। तो इसके बाद हम लोग इस पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जो आप लोग कर रहे हो, ऐसे ही है अब्दुल रहमान? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 तला शफकत अब्दुल हादी इमरान समीर सुल्तानी कौन रह गया और मेरी डिस्कशन में किससे नहीं? जी बिलाल फारूक, आप क्वेश्चन बेटा समझाएं क्वेश्चन 7। बिलाल फारूक जी सर, बेटा क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करो। जी सर, एक सेकंड बस, हाँ मुझे दे। सर ये इसमें 7xy स्क्वायर है ना सर, हम 7x कॉमन ले लेंगे और जो y स्क्वायर है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और 49 का स्क्वायर ले लेंगे सर, 7 का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। फिर हम इसको 7x को कॉमन लेके y प्लस 7 कर लेंगे और ब्रैकेट में फिर y माइनस 7 लिख लेंगे। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जी अब्दुल्ला मोहसिन, बस आप बेटा समझाएं, माइक ऑन करें। अब्दुल्ला मोहसिन बेटा, जी जी बेटा एक्सप्लेन करें क्वेश्चन 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर 5x 3 माइनस 45x है, तो इन दोनों में से हमने कॉमन देखना था क्या है। तो कॉमन ये है कि x कॉमन है इन दोनों के अंदर और दोनों ही 5 के टेबल के ऊपर जाते हैं, तो हमने 5x को ब्रैकेट के बाहर रख दिया और जो अनकॉमन चीजें थी उन्हें ब्रैकेट के अंदर रख दी। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये किया है कि हमने जो है ना उन दोनों को सेपरेटली जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर जो है ना उनका मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
which is equal to a plus b and a minus b, यानी x plus 3 और x minus 3. ठीक है, शाबाश. अच्छा बेटा, ये दो अब नई नेक्स्ट एग्जांपल्स हो रही हैं. मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम एक्सेस हम लोग कवर कर लें. मैं बार बार बेटा आपसे कहता हूँ कि ये जो आप चैप्टर अपने 5 और 6 कर रहे हो, ये आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है. जितनी अच्छी तरह तैयार कर सकते हो बेटा इसको कर लो. आपको इंशाल्लाह 9th 10th के मैथ को समझने में मुश्किल नहीं होगी. लेकिन अगर ये वीक रहा तो फिर मामला कोई गड़बड़ हो जाएंगे आप लोगों के लिए. आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, बल्कि आप मुझे कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको एक छोटा सा शायद नेक्स्ट वीक में, बल्कि ईद के बाद शायद असाइनमेंट्स का या टेस्ट है वो हों, तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी कर लें. मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट हर एक्सरसाइज को 1 और 2 टाइम जरूर सॉल्व करें, ताकि क्वेश्चन आपके बिल्कुल टिप्स पे हो. आपको क्वेश्चन की जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाएगा. सबसे पहले तो बेटा आप ये इतनी आपकी प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन अगर आपको पेपर पे दिया जाए ना, तो आप उसको थोड़ा सा लॉजिकली चेक करो कि क्या ये 6.1 में से है, whether it is from 6 to 6.3 और 6.4. अपनी तमाम एक्सरसाइज में सेपरेट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं. तो एक्सरसाइज वाइज आप इसको आइडेंटिफाई करो पहले एक्सप्रेशन को, और फिर आप उसकी फैक्टराइजेशन जो स्टार्ट करें. और ये तभी मुमकिन होगा बेटा जब आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज में हमने किस किस्म के फॉर्मूले डिस्कस किए. अब क्वेश्चन जी बेटा, फिर ईद की हॉलीडेज कब होंगी? बेटा जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वही होंगी. आई थिंक वही 31st गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया 31st की है. ईद है ना, तो मेरे ख्याल ईद और इसे एक का छुट्टी आगे दी हुई है बस. आई थिंक इतनी छुट्टी ही होंगी बेटा. सर जी बेटा सर ये एक्सरसाइज 6.5 नहीं है? 6.5 है. 6.5 ही है बेटा. चलें ठीक है सर, बस यही पूछ. सर कितने पार्ट करने हैं आज इसके? बेटा आप कोशिश तो करो कि मैक्सिमम आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही डालो. बहुत सिंपल सी तो है बेटा, सिंगल लाइन क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. अब ये देखो एग्जांपल 12 देखो जरा. 36 into x plus y whole square minus 25 into x minus y whole square. अब देखो यहाँ x plus y x minus y का होल स्क्वायर मौजूद है. बस सिर्फ आप लोगों ने 36 को भी स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है, 25 को भी स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है. क्योंकि जब ये दोनों ये कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्मेट तैयार नहीं होगा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो तब तक हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस 36 एंड 25. इन दोनों को भी आप लोगों ने होल स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है. तो देखो नीचे फर्स्ट में 36 या 6 का स्क्वायर होता है, तो एक बड़ी ब्रैकेट लगाकर बेटा इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया गया है. तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जो 5xy और 25 को हमने 5 होल स्क्वायर इंटू x माइनस y होल स्क्वायर. ये देखो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाकर एक सिंगल टर्म बनाई गई है, ताकि हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर सकें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. और उसके बाद नीचे देखो फॉर्मूले में हम प्लस b लिखा गया है और a माइनस b लिखा गया है. तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई ये सारे का सारा a बन जाएगा, और 5 इंटू एक्स माइनस वाई ये बेटा b बन जाएगा. तो a प्लस b और a माइनस b. अब उसके बाद इन्होंने एक स्टेप यहाँ आपकी बुक वालों ने मिस कर दिया हुआ है. उन्होंने आप मेंटली सॉल्व कर लिया है. तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद एक और स्टेप बनाएंगे जहाँ आप 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x प्लस 6y, फिर 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5y, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो उन्होंने ऑलरेडी इसको ब्रैकेट को ओपन करके उनको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा है 11x प्लस y. आप मेंटली भी कर सकते हैं, 6x आएगा और 5x आएगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 6y और माइनस 5y आएगा, उसमें से 5y माइनस होगा तो बाकी y आएगा. तो बेहतर होगा बेटा कि आप एक स्टेप इसके बाद आप इसको फर्दर इसको सॉल्व करने का बनाएं और फिर सिंप्लीफाई करके तो अपना आंसर लिखें. तो ये आपका आंसर आएगा 11x प्लस y और x प्लस 11y. इस तरह से एग्जांपल 13 है बेटा, ये भी बिल्कुल सेम है, a माइनस b स्क्वायर. अब वो ऑलरेडी बना के दे दिया गया है. You just have to convert it into factors. So by using the formula a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b.
अब देखो इसमें उसने कहा भी है कि आप इसको वैल्यूएट करो, दैट मींस कि हमने इसको आप आंसर निकालना है इसका, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो a प्लस बी करते हैं बेटा तो 1% आ जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो 354 आ जाएगा। आप 354 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 354,000, सिंपल आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़े से इसमें अब नया जो टाइप आ रही है उसमें इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास, तो आई थिंक ये आप इजीली कर सकते हैं। फिर एक और ये देखिएगा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.987 मल्टीप्लाई बाय 0.987 माइनस 0.643 मल्टीप्लाई बाय 0.643 और नीचे देखकर 0.987 प्लस 0.643। अब क्वेश्चन तो आपको ऐसे लिख के लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब देखिएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें 0.987 जब 2 टाइम्स आया, 0.987 मल्टीप्लाई बाय 0.987 तो उसको लिख सकते हैं 0.987 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आया। इस तरह से माइनस आगे आ जाएगा, फिर 0.643 मल्टीप्लाई बाय 0.643, ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिख लूंगा पावर 2, यानी 0.643 पावर 2। अब ये आपके पास फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो एक बार मैं लिखूंगा फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a प्लस बी और a माइनस बी का बेटा। तो a प्लस बी में इसको एक बार प्लस करके और a माइनस बी में फिर माइनस करके लिखूंगा। ये जो प्लस वाली टर्म है बेटा 0.987 प्लस 0.643, ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे बेटा और हमारे पास सिर्फ माइनस वाला जो है फैक्टर वो बचेगा, दैट इज 0.987 माइनस 0.643। अब आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लें या मैनुअली इसको माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.344। जी एग्जांपल समझ आ गई वाली आप लोगों को? यस। अच्छा, अगर ये एग्जांपल समझ आ गई है तो फिर एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह सॉल्व होगी आप लोगों से। अच्छा बेटा, अभी मैं आप लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं, जो आपकी आज की टास्क है वो मिनिमम ये 10 क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको इसी प्रेजेंटेशन में सॉल्व हुए हैं और मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। कोशिश करें जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, आप वो भी आज ही ट्राई करना है। जो मैंने भी आपको लास्ट बेटा सारी एक्सरसाइज कर लो, मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वही सारी एक्सरसाइज दिखाने लगा हूँ। ये हम लोगों ने बेटा लास्ट किया था 6.1। अच्छा ये देखो बेटा, ये है 6.5। तो हम लोगों ने भी अभी जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, तो अब इसके अगर ये रिमेनिंग क्वेश्चन करोगे तो ये मेरे पास आई थिंक उस फॉर्मेट में मिल गए ये पीडीएफ में। तो ये मैंने अभी आपको जो 11, 12, 13, 14 है, इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाई है। मेरे पास सिंपल जो है ना इस पीडीएफ फाइल में ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर आए हुए। और 15 पे आपने सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके माइनस b स्क्वायर का और बाद में इसको वैल्यूएट कर लेना। अगर आप सारे ट्राई करना चाहते हैं बेटा तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। आंसर बोले बेटा, बोलने सुनो सर, आंसर्स मौजूद होंगे पीपीटी में? बेटा आंसर बेटा ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, इसके आंसर आपकी बुक में होंगे। पीपीटी में सिर्फ फर्स्ट 10 जो मैंने फर्स्ट आई थिंक 10 करवाए हैं, ये फर्स्ट कितने करवाए हैं हम आपको दिखा देते हैं दोबारा। पीपीटी आप दोबारा देख लो, मैं ऑलरेडी इतने उसमें क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल करवाएंगे ताकि आप लोग जो है उसको बाकी रिवीनिंग पार्ट उसको खुद करें। पीपीटी में जो लास्ट क्वेश्चन है वो 8 तक करवाए गए हैं, बाकी एग्जांपल्स हैं। मैंने 8 तक उसके क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं और बाकी एग्जांपल डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई करें और ये एक मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होंगे तो बेटा नेक्स्ट भी जो इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें मैं इन क्वेश्चंस को, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें इंशाल्लाह एक्सप्लेन हो जाएंगे। और किसी हो जाएंगे। अच्छा बेटा, आप में से किसी के पास इसकी अगर बुक है ना तो मुझे ग्रुप ना इस एक्सरसाइज की जो है वो पिक्चर लेके जरा सेंड कर, क्योंकि आपने देखा कि मेरे पास जो पीडीएफ की बुक है ना उसमें क्वेश्चंस नहीं है, मैं जरा उसकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी उसमें उससे क्वेश्चन वहां से पिक कर लूँगा, ठीक है?
कोई भी आप में से एक बच्चा जो है वो इसकी पिक्चर लेके, वली बेटा आप कर दोगे ये काम, इस एक्सरसाइज की पिक लेके आपने सर कहाँ पर सेंड करनी है? ग्रुप में सेंड कर देना या मेरे नंबर पे सेंड कर देना, जैसे मर्जी। ठीक है सर। अच्छा बेटा, मजीद अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो बताइए, इस एक्सरसाइज के मुताल्लिक कोई आपके ज़हन में कंफ्यूजन हो? नो, इजी एक्सरसाइज है। यस, बहुत इजी, हमने पहले भी। चलो अभी आपके पास नेक्स्ट लगते 20 मिनट हैं, आप जल्दी से बेटा इसको